हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज मैथ्स में एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, चांस एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 74 पर दिया है। These words often come up in our daily life. We often say there is no chance of it raining today, and also say things like it is quite probable that India will win the World Cup. Let us try and understand this term a bit more. Consider the statement first: the sun coming up from the west, an ant growing to 3-meter height. Third, if you take a cube of larger volume, its side will also be larger. Fourth, if you take a circle with larger area, then its radius will also be larger. Fifth, India winning the next test series. If you look at the statements given above, you will say that the sun coming up from the west. तो वेस्ट में से सन आएगा वो आपको पॉसिबल लग रहा है, तो वो इम्पॉसिबल है, तो इज़ इम्पॉसिबल। एंड एंड ग्रोइंग टू 3 मीटर इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और ये भी सेकंड वाला भी पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, if the circle is of a large area, it is certain that it will have a large radius. large area होगा तो large radius भी होगा, ये possible है। You can say the same about the large volume of the cube and the large side. larger volume होगा तो larger होगा। You can say the same about the larger volume of the cube and larger side. On the other hand, India can win the next test series or lose it. Both are possible. जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब सबसे पहले हम चांस के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा है चांस: इफ़ यू टॉस ए कॉइन, कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रेडिकेट व्हाट यू विल गेट? ट्राई टॉसिंग ए कॉइन एंड प्रेडिक्टिंग द आउटकम ईच टाइम. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल. प्रेडिक्टिंग दैट मीन्स अनुमान करने का, तो हमें हर बार हेड आएगा या टेल आएगा वो पता ही नहीं है, तो यहाँ आपको प्रैक्टिस करने की है, घर पर बैठ के टॉसिंग करने का है, और ये एक्सरसाइज 10 टाइम करने की है। यानी वो प्रैक्टिस आप 10 टाइम करेंगे तो पता चलेगा क्या आंसर आता है। लुक एट द ऑब्जर्वेशन, कैन यू सी ए पैटर्न इन दैम? व्हाट डू यू गेट आफ्टर ईच हेड? Is it that you get head all the time? Repeat the observation for another 10 tosses and write the observation in the table. तो आपको प्रैक्टिस करने की है। यहाँ भी ऑब्जर्वेशन करके लिखा हुआ है, यहाँ भी एक नंबर दिया है, आउटकम दिया है H, तो H रिप्रेजेंट करता है हेड और T दैट मीन्स टेल। तो कॉइन की दो साइड आती है, एक साइड हेड होगा और दूसरी साइड टेल। तो इसके अंदर हमारे पास कोई पैटर्न नहीं है, इसके बाद ये ही आएगा, कोई फिक्स भी नहीं है। इन द अबव डेटा काउंट द नंबर ऑफ द हेड एंड द नंबर ऑफ द टेल्स, थ्रो द कॉइन सम मोर टाइम्स एंड कीप रिकॉर्डिंग व्हाट यू ऑब्टेन. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स you get a head and the total number of times you get a tail. You also might have played with a die. The die has 6 faces. When you throw a die, can you predicate the number that will be obtained? डाइक को थ्रो करते हैं तो हम अनुमान कर सकते हैं कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा। While playing Ludo or snake and ladders, you may have often wished that in a throw you get a particular outcome. Make bar graph using the above data showing the number of times 1, 2, 3, 4, 5, 6 have occurred in the data. तो यहाँ हम टैली मार्क करेंगे, बाद में कितने आए हैं वो इसके ऊपर से बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? वी नो दैट व्हेन ए कॉइन इज थ्रोन it has 2 possible outcomes, head or tail, and for a die we have 6 possible outcomes. We also know
from experience that for a coin head or tail is equally likely to be obtained, we say that the probability of getting head or tail is equal and is 1/2 for each. For a die, possibility of getting either of 1, 2, 3, 4, 5 or 6 is equal. ये 6 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है. That is, for a die there are 6 equally likely possible outcome. We say each of 1, 2, 3, 4, 5, 6 has 1/6, that means 1/6 probability. ये 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो 1/6 लिखते हैं. यहाँ हेड और टेल दो में से कोई एक आ सकता है, इसलिए 1/2 लिखते हैं. We will learn about this in the later classes, but from what we have done, it may perhaps be obvious that events that have many possibilities can have probabilities between 0 and 1. Those which have no chance of happening have probability 0, and those that are bound to happen have probability 1. Given any situation, we need to understand the different possible outcome and study the possible chances for each outcome. It may be possible that the outcomes may not have equal chance of occurring, unlike the cases of the coin and die. For example, if a container has 15 red balls and 9 white balls, and if a ball is pulled out without seeing, the chances of getting a red ball are much more. Can you see why? How many times are the chances of getting a red ball than getting a white ball? Probabilities for both being between 0 and 1. Okay, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.4. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. टेल whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain. First, you are older today than yesterday. यानी यहाँ देखते हैं तो certain to happen यानी हो सकता है, impossible तो नहीं हो सकता है, can happen but not certain हो सकता है लेकिन कोई फिक्स नहीं है. ओके, you are older today than yesterday. कल आप जितने थे इससे आप एक दिन बड़े हो गए. तो यहाँ हम लिखेंगे सर्टेन टू हैपन. तो यहाँ लिख देते इट इज सर्टेन टू हैपन. सेकंड, ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप. कॉइन का हम टॉसिंग करेंगे तो हेड ही मिलेगा. तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन कोई फिक्स नहीं है. तो यहाँ लिखेंगे इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. थर्ड, ए डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप. डाई को हम टॉसिंग करेंगे तो इसके ऊपर हमें 8 नंबर मिलेगा. तो कभी डाई के ऊपर 8 नंबर नहीं मिलेगा, 1 से लेकर 6 तक मिलेगा. तो 8 तो आने वाला ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल. तो यहाँ थर्ड में लिख देते हैं आंसर में इट इज इम्पॉसिबल. फोर्थ नंबर, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. अहमदाबाद में जाते हैं तब सिग्नल लाइट होती है, तो हम इसके बाद बोल सकते हैं ग्रीन लाइट ही होगी. हो भी सकती है, नहीं भी होगी. तो कैन हैपन बट नॉट टेन. तो फोर्थ नंबर में आंसर लिखेंगे इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. फिफ्थ नंबर, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे. कल क्लाउडी डे होगा. ये भी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन.
तो यहाँ लिख देंगे इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल रखे हैं और सबके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2। हम जब मार्बल निकालेंगे तो उसमें से 2 नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, यानी कि 1 भी हो आ सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो ये 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 1। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो टोटल कितने मार्बल हैं, तो 6 है। तो हमारे पास आउटकम में भी क्या रहेगा, 6। देयरफॉर टोटल आउटकम इज इक्वल टू 6। जब हम बॉक्स में से एक मार्बल निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। तो यहाँ हम लिखेंगे गेटिंग ए मार्बल विथ नंबर 2 is one of the 6 outcome. Therefore outcome is equal to 1/6। तो यहाँ हम लिख देंगे therefore the probability of drawing a marble with number 2 is equal to 1/6। ओके, इसके जैसा ही सेकंड है, What is the probability of drawing a marble with number 5। 5 नंबर निकालने में तो इसके जैसा ही होगा। तो यहाँ भी ऊपर जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, यानी बॉक्स में मार्बल 6 रखे हैं, टोटल आउटकम 6 हो गया। देयरफॉर टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। अब नंबर 5 निकालते हैं तो एक ही बार निकलेगा। तो यहाँ हम लिखते हैं गेटिंग ए मार्बल विच नंबर 5 इज one of the 6 outcome। therefore 1/6। तो यहाँ हम लिख देंगे the probability of drawing a marble with number 5 is equal to 1/6। Example number 3, a coin is flipped to decide which team start the game। What is the probability that your team will start। इसमें हम दो कंट्री के बीच में
क्रिकेट मैच होती है तब हम देखते हैं, या कोई भी गेम होती है तब हम देखते हैं किंग क्रॉस होता है, यानी कि कॉइन टॉसिंग होता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम कोई फिक्स नहीं कह सकते तो हमारे हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक आता है। और हमने जो पहले बोला होगा हेड, और हेड आ जाता है, हमारी गेम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे व्हेन ए कॉइन इज फ्लिप द total outcomes are 2। तो टोटल आउटकम 2 होंगे। कौन से होंगे? इसमें हेड भी हो सकता है और टेल। तो यहाँ हम लिखेंगे गेटिंग ए हेड और getting a tail is one of the 2 outcomes। यानी ये 2 आउटकम हैं, हेड या टेल दोनों में से कोई एक आने वाला है। ये 2 आउटकम हैं। अब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1/2। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट our team will start is 1/2। ओके, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। आपको आपकी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।